بسم اللہ الرحمن الرحیم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے رب، شہدائے کربلا کے صدقے ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ، آمین۔ حیدرآباد میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ جہازیب علی کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی مہنگائی کا طوفان ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آئے دن اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ آٹا چینی کا بحران تو اپنی جگہ، لیکن اب سبزیوں اور ہرے مسالہ جات کی قیمتیں بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہیں۔ پیاز 80 روپے کلو، ٹماٹر 120 روپے کلو، آلو 50 روپے کلو، ہری مرچ 120 روپے کلو، ادرک 150 روپے پاؤ اور لہسن 60 روپے پاؤ تک فروخت ہو رہی ہے۔ کیا کرے گا بھائی، ادھر مزدور آدمی ہیں، ہم ادھر آئے ہوئے لینے کے لیے 100 روپے لے کے آئے، صرف ٹماٹر میں پورے ہو گئے، باقی کیا لے گا آدمی؟ ہر چیز مہنگی لے گی بڑی، کوئی بھی چیز نہیں لے سکتے۔ میں سبزیاں لینے آئی تھی، لیکن یہاں تو بازار بہت مہنگا ہو رہا ہے، ہر چیز پر ریٹ بڑھے ہوئے ہیں۔ ٹماٹر جو ہے اسے 120 140 سے کم نہیں دے رہے، پیاز 80 اور 100 سے کم نہیں دے رہے، آلو کے ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں کہ لینا تو ہے نا۔ تو اب اتنی پریشانی ہو گئی۔ اسی طرح پیاز کا ہے 70 روپے کلو، بڑا منت کرو تو اتنی سی بیکار 50 روپے کلو۔ اب کیا کرتے ہیں؟ حکومت گورنمنٹ سے یہ خدا کے لیے ہم عوام کے لیے اس کے اوپر کوئی توجہ دے تاکہ ہم لوگوں کی مزدوریاں بھی چلیں اور یہ مہنگائی جو ہے کم ہوتا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ غریب آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے دعووں سے ہٹ کر عملی اقدامات بھی کیے جائیں۔ کیمرہ مین مانی پٹھان کے ساتھ جہازیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گرد و نواح میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ٹماٹر نے ڈبل سینچری مکمل کر لی، جبکہ ادرک 700 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے شہریوں کو ریلیف دینے کے سب وعدے جھوٹے ثابت ہونے لگے۔ شہر بھر میں مہنگائی کا طوفان ہے، غریب آدمی کی زندگی روز بروز مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ 500 روپے دہاڑی کمانے والا مزدور جائے تو جائے کہاں؟ سبزی کی بات کی جائے تو ٹماٹر 200 روپے کلو اور ادرک 700 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ آلو اور مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی 100% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ سبزیاں نہیں خریدی جا رہی۔ ایک بندہ دن میں 500 یا 700 روپے کی دیہڑی لگا کے گھر جا رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سبزی لے کے چلے جائے۔ ٹماٹروں کا ریٹ بہت اپ ہے، ادرک کا ریٹ بہت اپ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی فعال نظر نہیں آتی۔ خان سے یہ ہماری یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہمارا خیال کریں، ہمیں اس طرح نہ رلائیں، اس طرح نہ ماریں، کچھ قیمتوں میں کمی کریں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر کے غریب آدمی کی مشکلات کو کم کریں تاکہ وہ اپنی زندگی سکون سے بسر کر سکے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ کمالیہ میں بھی مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، سبز مسالہ جات سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے، جس سے شہری پریشان ہیں۔ اسد راجپوت کی رپورٹ۔ کمالیہ میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سبزی اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ۔ پیاز، ٹماٹر، مٹر، ادرک، لہسن نے تو سنچری کراس کر لی ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہریوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں، لہذا ہماری جو اجرت ہے وہ بہت کم ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ٹماٹر، پیاز، مرچیں، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ مہنگائی بہت ہو گئی ہے جی، سبزی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جڑی سستی ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ مہنگائی کا کنٹرول کرو۔ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ حکومت کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے بیانوں کی حد تک محدود ہیں۔ ایک طرف اجرت کم ہے تو دوسری جانب بے تحاشا مہنگائی، جبکہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں اور افسران اعلیٰ فوٹو سیشن اور سب اچھا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، جبکہ مہنگائی مافیا کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو فی الفور کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سبزی اور مسالہ جات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری شدید پریشان ہے۔ پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن نے سنچری کراس کر لی ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو فی الفور کنٹرول کیا جائے تاکہ انہیں ریلیف میسر آ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ دیگر شہروں کی طرح ترنول میں بھی ٹماٹر کی قیمت کو پر لگ گئے، لال ٹماٹر نے سینچری مکمل کر لی۔ شیر افضل کی رپورٹ۔
मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम न सका। तब्दीली सरकार के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद के नवाई इलाका तरनौल में टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लाल टमाटर की कीमत सुनकर तो शहरियों के चेहरे भी लाल होने लगे। शहरी कहते हैं 40 रुपए में बिकने वाला टमाटर 140 में फरोख्त होने लगा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। 30 रुपए किलो था तो अब तो 140 रुपए तुमने किलो टमाटर लगा दिया है। अब तो एक हिस्सा भी सालन का नहीं बनता है, वो बाल के खाते तुमने बड़ा दाम लगा दिया है। टमाटर अगे 30 रुपया किलो होया सी, हुण 140 रुपया कर दिता सी। असी किथे जावां गरीब लोग। टमाटर तो बहुत महंगे यार, घर वाले कहते हैं जाओ टमाटर ले। टमाटर आज से 10-15 दिन 20 महीना पहले जो है ना 25 से 30-35 रुपए आखिर थे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रोज बरोज बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। हांडी का लाजमी जुज भी पहुंच से दूर हो गया, जिसके बायस खवातीन खासी परेशान हैं। रिलेटेड बात करूंगी कि हम कैसे बनाते हैं, खास तौर पे टमाटर जिससे सब्जी बन ही नहीं सकती। और हम इतनी और आजकल महंगाई को देखें, टमाटर ऐसे है जैसे ये मटन बन चुका है हमारे लिए, और इतना महंगा हो चुका है। और उसके बगैर आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि सब्जी नहीं बन सकती। कोई दिन ऐसा कोई देखें कि बन नहीं सकती। उसके में हम कोशिश करते हैं कि चलो दही यूज किया जाए, और दही और दूध का और दही का भी रेट देख लें, लेकिन इस महंगाई को कम अज कम बेटर किया जाए, कम किया जाए। जी टमाटर इतना महंगा हो चुका है, बल्कि तमाम सब्जियां इतनी महंगी हैं और उनमें से टमाटर खरीदा ही नहीं जा सकता। किसी चीज को हाथ नहीं लगाया जाता और टमाटर हर चीज में पड़ता है। सब्जियों के रेट इतने बढ़ चुके हैं, और खास तौर पे देखिए टमाटर जो है वो हर सब्जी में, किचन में, हर जगह पे कोई भी खाना बनाते उसमें टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और इसका रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमारी खरीद से बहुत दूर है, तो गरीब बंदे की पहुंच कैसे वहां तक हो सकती है। अगर हम इसकी अल्टरनेट कोई दही वगैरह का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते हैं तो उसका भी रेट देख लें कि वो भी कहाँ है। तो खुदारा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इस टमाटर पे, खास तौर पे इसके रेट पे अपनी जो है ना वो जिम्मेदारी वो पूरी करें। और आपको बताते चलें, टिकटॉक के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। पीटीए ने टिकटॉक इंतजामिया को जवाब जमा करवाने की मोहलत दी थी। टिकटॉक के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर सामने आ गई। पीटीए ने टिकटॉक ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी गैर अखलाकी मवाद शेयर करने पर लगाई गई। टिकटॉक के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर सामने आ गई। पीटीए ने टिकटॉक ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी गैर अखलाकी मवाद शेयर करने पर लगाई गई है। पाबंदी अवामी शिकायत के बाद लगाई गई है। टिकटॉक इंतजामिया को जवाब जमा करवाने की मोहलत दी गई थी, ऐसा कहना है तर्जुमान का। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, पीटीए की जानब से जो है टिकटॉक जो है वीडियो शेयरिंग ऐप पर पाबंदी लगा दी गई है, और जो टिकटॉक यूजर उनके लिए बुरी खबर है। और पीटीए का तर्जुमान का ये कहना है कि टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद शेयर करने पर जो है पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी अवामी शिकायत के बाद लगाई गई है और बहुत ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी। इससे कबल टिकटॉक को जो है जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत भी दी गई थी, जिस पर उन्होंने कोई जवाब जमा नहीं कराया, ना ही जो कि नए कवानीन के मुताबिक 3 हफ्तों के दौरान जो है उनका फोकस पर्सन मुकर्रर करना था किसी भी जो है सोशल मीडिया साइट को पाकिस्तान में, लेकिन वो भी पीटीए की तरफ से मुकर्रर नहीं किया गया था, और ना ही पीटीए जो है गैर इखलाकी मवाद हटा रहा था। उस पर आज ये पाबंदी लगाई गई है और आज से ये नाफिज अमल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सज्जाद काजमी। रुख करेंगे कराची का, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे हैं। करना पड़ रहा है, अवाम जाए तो कहां जाए। आटा को बहरान हो, वीट का बहरान हो, शुगर के प्राइसेस को देखे, खाने पीने के आशिया को देखे। इस हुकूमत ने हमारे अवाम को दीवार से लगा दिया है, दीवार से लगा दिया है। एनएफसी शहर नहीं देती, हर सूबा को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हो, चाहे वो एजुकेशन का निज़ाम हो, हर सूबा में इस वफाकी हुकूमत का नालायकी का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से इस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई है, इस हुकूमत के सहूलतकारों के खिलाफ आवाज उठाई है, और अब आज तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि हमें अवामी हुकूमत ले आना पड़ेगा, जमहूरी निज़ाम वापस लेकर आना पड़ेगा। जमहूरी निज़ाम में हमारे अवाम का स्टेक होता है,
जमहूरी निज़ाम में हमारा आवाम का सुना जाता है। इस निज़ाम में हमारा आवाम का कोई स्टेक नहीं है, वो अपने मसाइल किसी भी फोरम पे उठा नहीं सकते। हमारा पार्लियामान रबर स्टैंप में तब्दील कर चुका है। एक आमिराना तरीकाकार जो ये स्पीकर ने अपनाया है इस हुकूमत के कहने पे, वो फोरम पे उस फोरम पे हम अवाम के मसाइल नहीं उठा सकते। टीवी चैनल्स पे आ जाते हैं, आपके मीडिया चैनल्स पे आ जाते हैं, हमारा इंटरव्यूज को सेंसर कर देते हैं। हम एहतजाज पे उतर आते हैं, जलसे जुलूस पे आते हैं कि हम अपने अवाम के दरमियान में आके उनके साथ हमारा सॉलिडारिटी दिखा सके। आप इंतकामी सलूक शुरू कर देते हैं। इस किस्म की जो फैशिस्ट रजीम है, जो ऑथोरिटेरियन रजीम है, वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अब इनकी गिनती शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला सारे जो इस मुल्क के जमहूरी जमातें हैं, हम मिलके इस नाहलैक नाअहल हुकूमत को खत्म कर देंगे, एक जमहूरी निज़ाम लेकर आएंगे जिसके थ्रू हम अपने अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। सवाल ये है कि आपकी हुकूमत एनओसी दे देती है 3 महीने तक, जुलाई से लेकर अब तक इस मसले को राज में रखा जाता है। एक तो ये मसला, दूसरा वज़ीर आज़म ने अब गवर्नर को हिदायत दी है कल मुलाकात करके कि आप जाएं और सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात करें। क्या आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे और आप क्या चाहते हैं? सिंध हुकूमत के पास क्या टाइम? नहीं, बिल्कुल खबरदार, एब्सोल्युटली नॉट। ये ऐसे हो नहीं सकता, मैं इनसे मिलेंगा भी नहीं। वापस लो अपना ऑर्डिनेंस। और मेरा हुकूमत का नीयत साफ है। मेरा हुकूमत एक अच्छी नीयत के साथ किसी के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन हम किसी भी गैर आईनी अंदाज में किसी कॉन्वर्सेशन भी शुरू नहीं कर सकते। तो आप ये भूल जाए, जिस नीयत के साथ हुकूमत आपके साथ काम करने चाह रहे थे, आप काम नहीं करना चाह रहे थे। आपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस के तहत हमारे आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की। ना सिर्फ हमारा आइलैंड्स हो जाता है, ये पूरा फिर कोस्टल बेल्ट आ जाता है। आप कह रहे हो कि ना सिर्फ सिंध के आइलैंड्स आप कब्जा कर देंगे, मगर बलोचिस्तान के आइलैंड्स भी कब्जा कर देंगे। वापस लो। मेरा पहला मुतालबा है कि उनको अपना गैर आईनी, गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस को फौरन वापस लेना चाहिए। हमारे जो कराची के अवाम है, उनका वो जो इस सूबे के अवाम है, और खासतौर पर इस शहर पे जहां ये डेवलपमेंट तो ये जो मंसूबे करने चाह रहे हैं, वो उन पे नियत पे भी शक करने शुरू हो गए हैं। उनका पहले भी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सही नहीं रहा। मलीर का कराची का पैसा आज तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। उनका पैसा उनको दिलवा दे ताकि हम उनको पानी का मंसूबा दे सकते हैं, उनके कचरे उठा सकते हैं, उनके हक है उस पैसा पे, वो भी आपने नहीं दिया। फौरन आपने वो जो वादा है, वो जो उनका चीज है, उनका हक दिलवा दे। जो जहां पे आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, उन आइलैंड्स पे माहीगीर रहते हैं। आपने उनसे पूछना है वो क्या करना चाहते हैं। हमारे जो माहीगीर है वो तो सख्त नाराज है हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से। उनका फिशिंग पॉलिसी पे वो नाराज है। उनको अपना फिशिंग पॉलिसी को भी तब्दील करना पड़ेगा, जो पे हमारे सारे के सारे माहीगीर सरापा एहतजाज है। आप भूल जाए, हम आपके साथ, हम इस हुकूमत के साथ इन सूरत हाल में बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। अब हमने अपने अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें कोई इरादा नहीं था, मेरे ख्याल में किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये हुकूमत इस किस्म का हरकत कर सकता, लेकिन जिस तरीके से ये अब हो चुका है और आज तक इतने दिन गुजर चुके हैं, इतना मुतनाज़ा इशू बना हुआ है, मेरा पूरा सूबा सरापा एहतजाज है, और वो आज तक अपना ऑर्डिनेंस वापस भी नहीं लिए हैं। तो ये कैसे बात कर सकते? मैं क्यों उनसे बात करें, किस चीज पे बात करें? सो नॉन स्टार्टर किरण साहब ये बताएं कि आप जब आ रहे थे तो इससे पहले इमरान खान टीवी पर था और इमरान खान ने अपने बारे में बड़ी इंकशाफात किए उन्होंने कि फौज इसलिए मेरे साथ है कि मैं करप्शन नहीं करता। अच्छा जिस तरह आप ये तो उनका ये कहना था कि मैं
इसीलिए फौज मेरे साथ है कि मैं करप्शन नहीं करता। और दूसरा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि आप जितने बड़े जलसे कर लो, आप 2 साल जलसे करो, मैं एक ऐसा जलसा करूंगा आपसे बड़ा जलसा हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपकी ब्लैक मनी में नहीं आएगा। अच्छा, एक तो मैं समझता हूं कि इमरान खान को, हमारे इदारे को, खासतौर हमारा फौज को एक सियासी प्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर चीज पे, हर जगह पे हमारा फौज हमारे साथ है, ये इदारा हमारे साथ है, फलां के इदारे हमारे साथ है। ये किसी एक जमात का इदारा नहीं होते, ये हर पाकिस्तानी के इदारे होते हैं। तो फौरी तौर पे इमरान खान को अपनी सियासी बयानबाजी को पहले दुरुस्त करना चाहिए और फौज का काम नहीं होता कि करप्शन को देखना। वो तो आपने नैब और कोर्ट्स और बाकी इदारे बनाए हैं उस काम के लिए, और उस काम के अगर आपने करप्शन नहीं की तो क्यों भाग रहे हो? आप इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज से क्यों भाग रहे हो? अगर इमरान ने करप्शन नहीं की तो आज तक पेशावर मेट्रो पे जिनके बसेस जल रहे हैं, सरे आम पेशावर मेट्रो के बसेस जो इमरान खान ने ऑर्गेनाइज किया है, उनको आग लग रही है खुद ब खुद। उस पे आप नैब का इंक्वायरी नहीं कर रहे हो। आपकी अपनी बहन के खिलाफ आप इंक्वायरी तो फिर करें, आप इतना साफ और शफाफ हो। आप उस सिलाई मशीन से जो इमारतें बन रहे थे उसका जवाब दो। जहांगीर तरीन तो लंदन में मजा कर रहा है, उसका हिसाब किताब का क्या हुआ? आपका अबराज ग्रुप का के इलेक्ट्रिक जो आज तक मेरे कराची के अवाम खून चूस रहे हैं, उनका आपने एहतसाब किया है क्यों नहीं? इसलिए तू करप्शन करते हो, तो तेरे जो इत्तेहादी है, जो आपके कैबिनेट मेंबर्स है, तो सारे के सारे करप्ट है, करप्ट तरीन है। इंटरनेशनल एमनेस्टी क्या, ये करप्शन का जो इदारा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने तो फिर उसका मतलब वजीर आजम करप्ट। तो इमरान खान ना सिर्फ करप्ट है, करप्ट तरीन हुकूमत का वजीर आजम है। वो खुद कहता था कि जरदारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उनका यह कहना था कि ये बात वाज़ेह हो चुकी कि इस वक्त आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और दूसरा, सिंध में जो आइलैंड का मामला हुआ और सदारती आर्डिनेंस उस पर सामने आया है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जो वादे और दावे किए गए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया गया। जबकि सिंध के हवाले से उनका कहना था कि सिंध की आवाम के हुकूक छीनने की कोशिश की जा रही है, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। यहां पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। आटे की कीमत 80 से 85 रुपए तक पहुंच गई, जिससे शहरी परेशान हैं। इजलाल हैदर की रिपोर्ट। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फी किलो आटे की कीमत 85 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि शहर में 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब ही नहीं। जिन जगहों पर आटा मौजूद है वहां 1000 से 1200 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। हर चीज महंगी हुई है, आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज महंगी हुई है। तो ये जो थैले वाला वो तो मिल नहीं रहा, चक्की से मिलता है 75 रुपए, 80 रुपए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ज़बानी जमा खर्च कर रही है, रोटी भी गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। यकीन करें, जब से ये आई है ना, बिल्कुल रुक गए, कुछ काम नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक गंदम की किल्लत का मसला बरकरार रहेगा, आटे की कीमतों को लगाम नहीं दी जा सकती। आटे की मेन कास्ट जो है बढ़ने की है, गंदम नहीं है। गंदम हो तो आटा सस्ता हो, गंदम ही दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने 60 लाख टन गंदम खरीदी है और पता नहीं अब कहाँ गई है वो गंदम सारी। आटे की मुसलसल बढ़ती कीमतों के बाइस नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गंदम की किल्लत खत्म करने के लिए दावों के बजाय अगर अमली इकदाम करे तो यकीनन आटे की फी किलो कीमत जो है उसकी सेंचुरी होने से रोका जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर।
महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रायगढ़ में चक्की मालकान ने आटे की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया। आटे की फी किलो कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई, जिससे शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटा तो मिल ही नहीं रहा, अब हमको 860 रुपए का दे रहे हैं, वो भी एक थैला दे रहे हैं। जो 2 मांगता है उसको कहते हैं 1 घंटा बाद आना, 1 घंटा इधर ही खड़ा रहे या कोई और लेके जाए। तो एक आदमी एक दिन में एक थोड़ा इसको मिलता है। गरीब आम तो आटे के लिए बहुत तंग हो रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट गंदम नहीं दे रही की ते डीसी को पेश होया तो उन्होंने कहा अच्छा 4-5 दिन थोड़ा दिन कुछ कर रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं मिल रही। डायमंड में आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। दुकानें पे जाते हैं वो आटा ब्लैक बेच रहे हैं, तो आटा बिल्कुल ही नहीं है डायमंड में। तो आटा हमारी मिसाल की जाए 80 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं आटा, और घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है। हमारी मिसाल की जाए रायगढ़ में आटे का बहरान जो है वो रायगढ़ में आटे की किल्लत है। रायगढ़ किसी दुकान के पास आटा पड़ा वो 80 रुपये किलो दे रहा है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। लिया में आटे का बहरान सर उठाने लगा। बिल मालकान ने गंदम की अदम फराहमी को आटे की किल्लत की वजह करार दे दिया। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। गंदम खरीदारी के दौरान हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते रहे कि इस साल रिकॉर्ड गंदम खरीदी गई, जिससे मुल्क में आटे का बुरान आने के खदशे दम तोड़ गए, मगर ये दावे धरे के धरे रह गए। लिया में आटा बुरान संगीन होता जा रहा है। फ्लोर मिल्स मालिक का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान आटा बुरान की वजह बताते हुए कहना था, गवर्नमेंट कोटा थोड़ा दे रही है गंदम का, इस वजह से जो है ना हमारी आबादी बहुत ज्यादा है जिले की, जिसकी वजह से जो है ना आटे की मसला बन रहा है शॉर्टेज का। अगर गवर्नमेंट कोटा बढ़ा दे तो इंशाल्लाह शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। जब तक गवर्नमेंट कोटा नहीं बढ़ाती तो ये शॉर्टेज मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। महकमा फूड इस बात पर डटा है कि गंदम जरूरत के मुताबिक फराम की जा रही है। अगर महकमा के इस दावे को सच मान लिया जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आटा जा कहाँ रहा है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डिस्बल खान में फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। कार्रवाई के दौरान 250 किलोग्राम चोकर और भूसा मिले मसाला जात बरामद कर लिए गए। डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं आवाम को मेयारी और साफ खुराक की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिस्बल खान में डिप्टी डायरेक्टर वासिफ खान की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर ने कार्रवाई के दौरान 520 किलोग्राम चोकर और भूसा मिले मसाला जात बरामद कर लिए हैं। मसाला जात को फूड अथॉरिटी की टीम ने अपने कब्जे में लेकर जुर्माना आयद कर दिया। हलाल फूड अथॉरिटी की टीम ने मुख्तलिफ होटल्स और फास्ट फूड रेस्टोरेंट समेत दीगर दुकानों में सफाई और दीगर उमूर की भी चेकिंग की और सफाई का मेयार बेहतर करने के लिए नोटिस जारी किए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डिस्बल खान डिवीजन का कहना था कि फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मिलावट माफिया समेत मुज़र सेहत और ममनुआ अशिया की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। रहीम खान में हजारों लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। दुकानदारों को भारी जुर्माना भी आयद किया गया। रहीम खान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए दूध फरोशों को रास्ते में रोककर चेकिंग की और हजारों लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया। फूड अथॉरिटी की सेफ्टी टीम्स ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मिल्क शॉप्स पर भी कार्रवाइयां की और मिलावट शुदा दूध साबित होने पर दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। पेशावर हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मालकान को लॉकडाउन में स्कूल बंदिश पर फीसें वसूल करने से रोक दिया है। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूलों के फीस का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ ने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में हरासा करने का सख्ती से नोटिस लेते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नोटिस जारी किया है और प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है और सेक्रेटरी लॉ को और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो अदालत में मौजूद थे उन्होंने वो नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है। चीफ जस्टिस के इस फैसले पर वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि प्राइवेट स्कूल मालिकान वालिदैन से फीसों का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन की वजह से हुकूमत ने फीसों में सिर्फ 10% रिलीफ दिया। हुकूमत को और PSRA को ये भी हुक्म दिया है कि वो तमाम प्राइवेट स्कूलों को ये इन्फॉर्म करें कि वो
कोरोना पेंडेमिक के फीस के बाबत किसी बच्चे को हैरेस नहीं करेंगे और पेरेंट्स इस ऑर्डर की वजह से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जब तक इस रिट का फैसला नहीं हो जाता तब तक प्राइवेट स्कूल्स आपके बच्चों को फीस की बाबत कुछ भी नहीं कहेंगे और उनकी जो पढ़ाई है वो जारी रहेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हाई कोर्ट की हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने आज हमें इंटरम रिलीफ दिया है और हम तवक्को रखते हैं कि अगली पेशी पे हमें इस पे कंप्लीट जो हम चाह रहे हैं हमारी जो डिमांड्स है वो हमें मिले। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत को 14 अक्टूबर तक मुलतवी करके महकमा तालीम के आला अफसरान को अगली पेशी पर तलब कर लिया। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से सरदर्द, बुखार, शुगर समेत 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे मुल्कवाल की आवाम भी परेशान है। जानते हैं चौधरी राशिद से। जी राशिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूं मलकवाल की मेडिसिन मार्केट में, जहां पर मरीज और उनके वरसा काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि चंद रोज कबल हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमत में 262% इजाफा इंतहाई जालमाना कदम है। उनका कहना है कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तो फ्री होता है, लेकिन अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से दोबारा बाजार का रुख करना पड़ता है। आम शहरियों की पहुंच से अद्वियात दूर हो गई हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों की रोजमर्रा की अद्वियात उनकी पहुंच से दूर हैं। वजीर आजम इमरान खान से अपील है कि वो इस फैसले को फिलफौर वापस लें ताकि अद्वियात आम शहरी की पहुंच में हों और शुगर, ब्लड प्रेशर और सर दर्द के मरीज जो कि डेली की बुनियाद पर अपनी अद्वियात खरीदने हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। जी शुक्रिया चौधरी राशिद। भोंक शहर में करोड़ों रुपए की लागत से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत तो तामीर कर दी गई, मगर 12 साल गुजर जाने के बावजूद भी फाल नहीं हो सकी, जिसके बायस बच्चे हुसूल तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भोंग शहर में अरसे दराज से करोड़ों रुपए की लागत से हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग तो बनाई गई, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो से बहुत अरसा गुजर जाने के बाद भी हाई सेकेंडरी स्कूल फाल ना हो सकी। इसी हवाले से अहले इलाका कहना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की लागत से ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, ये 2008 में तामीर की गई थी, लेकिन 12 साल गुजर जाने के बावजूद ये बिल्डिंग गैर फाल है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई बिल्डिंग को फाल नहीं किया गया और हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पुरज़ोर मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस बिल्डिंग को फ़हाल किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी तालीम हासिल करके मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। इनका कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग तो बनाई गई, लेकिन बहुत अरसा गुजर जाने के बाद भी फ़हाल ना हो सकी। अहले इलाका के लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील की है कि जल्द से जल्द हाई सेकेंडरी स्कूल को फ़हाल किया जाए। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट schtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. This news bulletin is brought to